Hi guys, so let's start with lesson 14, the strategic analysis and planning. In this chapter, we'll be learning about a few strategies and business techniques. When I talk generally about strategic analysis and planning, this is a certain kind of a planning made for future perspective. So this is just general future planning that we do. Now, why would you do future planning? So that you can achieve more profits, more goodwill, more benefits. Okay, simple. Now, what do you mean by situation analysis? Situation analysis simply means that you don't just land up in any place and start doing any business. You analyze your situation, your surroundings, your environment first. So situation analysis can also be called as environmental analysis, where before setting up any strategy, you look at your surroundings. Surrounding is what problems people are facing, who are your potential people, who is your target audience, how is their behavior and everything. Now, why is a analysis of the environment required to be done? So that you can achieve your objectives and you can apply your resources accordingly. Now, situational suitability of situational analysis. Now, obviously, small businesses do not enter into all this. They do not do so much thinking as we are talking of big businesses. Big businesses spend a lot in R&D, research and development. ठीक है? अभी सिचुएशन एनालिसिस के दो मॉडल्स करने वाले हम लोग. लेट्स सी. नाउ टेल मी, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई भी बिजनेस करने वाले हो, उसका तुम जो एनालिसिस है वो तुम बिफोर द प्रोजेक्ट करोगे या बाद में, प्रोजेक्ट करने के बाद में देखोगे कि करना चाहिए था कि नहीं. व्हेन यू शुड हैव डन इट, बिफोर और आफ्टर द प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस कब करना चाहिए? बिफोर और आफ्टर द प्रोजेक्ट? इट शुड बी डन बिफोर द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो अभी देखते हैं कौन से टाइप के स्ट्रैटेजीज होता है. अब तुम ऑब्वियसली सब अलग अलग प्रोडक्ट सिचुएशन एंड कंपटीशन को स्टडी करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करोगे. नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टडी. ओके, समथिंग विच यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. वन इज द स्वॉट एनालिसिस. बिफोर एंटरिंग इन एनी मार्केट you would do a SWOT analysis, analysis of your strength, weakness, opportunities and threats. Let's see. Now, यहां से strength and weakness are internal factors, whereas opportunities and threats are external factors. When I say internal, मतलब क्या? तुम्हारे बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारे बिजनेस की वीकनेस क्या है. एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स में क्या होता है? मार्केट में बियॉन्ड द बिजनेस, व्हाट इज द स्कोप इन द मार्केट. थ्रेट, व्हाट इज द थ्रेट्स आउटसाइड योर बिजनेस, लाइक योर कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. सो दिस इज देयर. सो SWOT analysis you must have heard of. You do this analysis before entering into the business, before starting the project. Now, इसका ही एक एक्सटेंशन है, ये तो तुम्हें पता होगा ही. इसका एक एक्सटेंशन है विच इज कॉल्ड एज टाउस एनालिसिस. अभी समझते क्या है टाउस or whatever, TOWS, what do you want to call it. Let's see. This SWOT analysis से ही बना हुआ है. पहले SWOT analysis बनाया किसने? SWOT analysis. It was a concept of force SWOT analysis pronounced by Kelvin, K. Kelvin in 1950. Now let's see what is this TOWS. Now what it is doing, strength, weakness, opportunities, threats को वो लोग merge करते हैं और उसे थोड़ी strategies बनाते हैं. So this is not just a rearrangement. It is not a rearrangement. It is not just a reversal of the SWOT. It is a strategy tool for generation and selection. So TOWS will help you
फॉर्म्यूलेट स्ट्रैटेजीज. समझ से कैसे? ओके, so this is a advancement over the SWOT analysis. SWOT you must have heard of. This you must have heard of it the first time. Let's see. अब ये जो था ये किसने बनाया? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्कूल में पूरा हुआ था. Let's see. Both the internal and external factors को combine करते वो लोग to get a certain understanding. Let's see. Now, ये टाउस का एनालिसिस का स्ट्रक्चर है, उसको यहां पे हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. सो द स्ट्रेंथ्स आर रिटन ऑन वन साइड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ठीक है, ये सब इधर लिख रहे हैं. यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दैट इज द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और यहां पे इंटरनल फैक्टर्स है. इंटरनल मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस. इसका कॉम्बो बना के 4 स्ट्रैटेजीज बनाई है वो लोग ने. कौन सी है? SO, WO, ST and WT. Now it seems complicated but it's not. Let's see what it is. जो भी 4 फैक्टर्स है उसको कंबाइन करते हैं. ओके, लेट्स सी. इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी जो प्रोवाइड की है टाउस के अंदर, इट इज दीज 4. Okay, aggressive, defensive, conservative and competitive. Now this table summarizes it very nicely. Any business, they now instead of doing a SWOT analysis, do this TOWS analysis. What they do is they write first of all, where are you? So external factors इधर आएंगे और internal factors इधर. Let's say first category का हम लोग पकड़ते हैं, SO. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. फर्स्ट स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है? देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ. सो दोनों ही बहुत अच्छे फैक्टर्स है. अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट में और स्ट्रेंथ भी है तुम्हारा, तो ये दोनों ही अच्छी चीजें, तो इसको मैक्सी स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं. बोथ ऑफ देम are the good side. Now tell me one thing, during this if you are operating in this sphere, okay, would you go full all out पूरा aggressive strategy apply करोगे कि थोड़ा रुक के जाओगे? मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है और तुम्हारा स्ट्रेंथ भी है, ऑल आउट जाओगे कि नहीं? So in this SO strategy, that is the maxi strategy, it is called as a अग्रेसिव स्ट्रैटेजी. समझते ही किसने अप्लाई किया था? अभी इफ यू सी अ कंपनी लाइक जियो रियलाइज कि वो उनके स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं. जियो, मुकेश अंबानी ही हैज वर्कड इन टेलीकॉम विथ हिज फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही न्यू टेलीकॉम वाज हिज स्ट्रेंथ. एंड मार्केट में बोलो मोबाइल और ये सब का टेलीकम्युनिकेशन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था. सो दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर्स है. तो ही वेंट ऑल आउट एंड ही अप्लाइड द अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, द मैक्सिमम स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अप्लाई. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द अदर वन. द अदर वन इज मैक्सी मिनी. ये क्या है मैक्सी मिनी? ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैक्सी मिनी स्ट्रैटेजी. Here there is threat in the market. ये ज्यादा है, थ्रेट है मार्केट में, मैक्सी है, बट तुम इंटरनल में काम कर रहे हो, तो इंटरनल स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, ये अच्छी पॉजिटिव पार्ट है, मैक्सी है. और दूसरा व्हाट इज द बैड पार्ट? एक्सटर्नल में थ्रेट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, तो ये वाले स्पीयर में जाओगे तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा. ST की स्ट्रैटेजी क्या है? दैट इज जब मैक्सी मिनी होगा तो थोड़ा संभाल के जाना चाहिए. ST में यू शुड गो लिटिल धीरे धीरे. लेट्स सी ये कौन सी कंपनी थी? कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी. लेट्स से आजकल इमेजिन इफ यू आर अ वेरी बिग एंटरटेनर
Okay, you must have realized that everything is becoming online, and now starting a YouTube channel is much better. Okay, you see so many bloggers come out, you have so many comedians, they are making a lot of money, right or wrong? तुमको भी तो माइंड में आया होगा कि YouTube चैनल चालू करें और पैसे कमाएंगे if you are a content creator. Now, imagine if you are a really good entertainer, you have a lot of content, you have a lot of things to say, you are an interesting personality. तभी I'm saying you're working on your strength. So you are working on your strength, but market में competition बहुत है. मार्केट में यूट्यूब चैनल में रैंक होना बहुत ही मुश्किल है, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में. सो ऐसे इसमें तुम क्या कर सकते हो, यू विल ट्राई टू गो फॉर डेवलपिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स. यू विल ट्राई टू सर्च अ नीश एरिया, एकदम स्पेसिफिक एरिया में काम करो जिधर तुम इजीली रैंक कर पाओगे. तो ऐसे एक टारगेट ऑडियंस, टेक्निकल गुरुजी, तो सिर्फ टेक्निकल पे ही बात करने का. प्रोडक्ट रिव्यूज तो सिर्फ उसका ही होगा. तो तुम ऐसी कैटेगरी में रहोगे जिधर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट तुम्हारे स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, बट मार्केट में थ्रेट्स बहुत हैं. सो यू शुड बी एट योर कॉम्पिटिटिव बेस्ट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग ऑफ तुम्हारा वीकनेस है बट मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. तुम्हारा इंटरनल वीकनेस है बट मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो इट इज कॉल्ड एज मिनी मैक्सी स्ट्रैटेजी, WO. तो उसका देखते क्या है मिनी मैक्सी. तो तुम्हारा वीकनेस है, फर्स्ट में हमेशा इंटरनल फैक्टर के ऊपर दे रहे, बाहर में एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. तो तुम्हारी वीकनेस है बट मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें पूरा कॉम्पिटिटिव करना, यू विल हैव टू बिकम कॉम्पिटिटिव. लेट्स सी उसका क्या एग्जांपल है. Now let's say Nokia. When we say Nokia, did Nokia have very good products? Yes or no? Nokia के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी थी क्या? Were they able to advance? So when I was seeing, when all of us know Nokia was at one time the best, but what happened is Nokia का there were no technological advances from them. तो वो लोग अपना वीक पॉइंट था, उनके पास में स्किल्स नहीं थे टेक्नोलॉजी के, व्हाट्सएप के, एंड्रॉइड सिस्टम नहीं था, तो उनकी वीकनेस थी. बट उनको पता था कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है. सो व्हाट दे शुड हैव डन, दे शुड हैव expanded, they should have improved their line of products, but they couldn't do that. तो बट उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी. लास्ट, now I think this you should be able to understand what it is. मिनी स्ट्रैटेजी. मिनी स्ट्रैटेजी मतलब क्या, तुम्हारा वीकनेस है और मार्केट में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट्स है. तो ऐसे बिजनेस के अंदर इट डजंट मेक सेंस सर्वाइविंग. लेट्स से इट्स WT, दोनों ही खराब चीज है. तुम्हारी वीकनेस है, मार्केट में भी बहुत खतरनाक प्लेयर्स बैठे हैं. तो ऐसे केस में तुम या तो बिजनेस शट डाउन करो, डिफेंसिव एक्ट करना पड़ेगा. डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में क्या था, बजाज रियलाइज दैट दे आर ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनको जाना ही नहीं था, दे डोंट वांट टू कम्पीट. सो दे सेड दे एज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, दे न्यू दैट दे वर नॉट गुड एट इट एंड दे न्यू के मार्केट में बहुत थ्रेट्स भी है. सो माइट एज वेल शट डाउन द एंटायर सेगमेंट. तो पूरे सेगमेंट को ही बंद कर दिया वो लोग. तो अगर तुम्हारा वीकनेस नहीं है वो चीज और मार्केट में भी थ्रेट्स बहुत सारे हैं, तो भाग जाओ वहां से. विड्रॉवल, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, सीज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जस्ट फोकस ऑन सर्वाइवल और ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. सो लेट्स सी, ऐसे ही कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. तो एप्पल का भी एग्जाम्पल दिया है, वो लोग लिखते हैं कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, SO, ST, WT एंड WO. ऐसे वो लोग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, वैसे ही नाइक के. एंड देन दे गेट, सो व्हाट हैपेंस विद द बेनिफिट ऑफ दिस, द बेनिफिट इज दैट द business gets an idea of what is happening around it.
and they can formulate a strategy accordingly. ठीक है, तो एक छोटे से टेबल के अंदर तुम नोटिस करोगे कितना सारा इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन से मिल जाता है. ये तुम्हारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स है. बट इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, लाइक समथिंग लाइक दिस. क्लियर है ना? एंड देन दे विल स्ट्रैटेजाइज. सो जस्ट बाय दिस स्मॉल लिटिल टेबल you can then formulate what you want to do, where you want to target, and so on. Now let's go to the next strategy. The next is, now these are just two little topics, then we'll come with interesting strategies. इसमें क्या है? Program Evaluation Review Technique, PERT, and the second is called as Critical Path Method. एक ये है और एक क्रिटिकल पार्ट मेथड. ये जो रहते हैं, जो प्रोडक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दिस इज फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट अनसर्टेन होते हैं कि पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा. ओके, अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स. तो उसके लिए हम लोग एक पर्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई कितने टाइम में कंप्लीट होगा. टाइमिंग हमको डालना पड़ेगा और उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो लोग कि यार अगर गुड सिचुएशन होगा तो क्या होगा, अगर मीडियम सिचुएशन होंगे तो क्या होगा, और बैड सिचुएशन होगा तो कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. मतलब क्या, पर्ट में एक प्रोजेक्ट को 3 पॉसिबिलिटीज में कैटेगराइज करते हैं. गुड, नॉर्मल, वर्स. गुड में मतलब सब अपने फेवर में गया तो प्रोजेक्ट फटाक से कंप्लीट हो गया, टारगेट अचीव हो गया. बट जरूरी नहीं कि हमारे सब फेवर में जाए. हो सकता है हमारे अगेंस्ट सब कुछ चला गया है, ऑल द बैड टाइमलाइंस हैपेंड, ऑल द पॉसिबल बैड थिंग्स हैपेंड. तो वो कितने टाइम में खत्म होना चाहिए, एंड नॉर्मली प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म होना चाहिए. सो दिस इज फॉर अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स. ये जो है क्रिटिकल पाथ मेथड, ओके, इट इज फॉर बोथ टाइमिंग, कितने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए और कितने कॉस्ट में खत्म होना चाहिए प्रोजेक्ट, दोनों के बारे में मेंशन करता है कि प्रोजेक्ट को इतने महीने में खत्म हो जाना चाहिए और इतने मैक्सिमम लिमिट के अंदर खत्म होना चाहिए. क्रिटिकल पाथ. इसको क्या करते हैं, अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स नहीं, जो रूटीन प्रोजेक्ट्स रहते हैं, रूटीन जो डे टू डे होते रहता है या तुमने ऑलरेडी किया हुआ है. सो इट इज ऑलरेडी नोन व्हाट ऑल इज द टाइमलाइंस. दिस इज यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. So let me explain. Construction projects में क्या होता है, you the builder already knows कि यार फेज 1 में ये करना इतने पैसे में होना चाहिए, फेज 2 में इतना कर रहे इतने पैसे में होना चाहिए, फेज 3 इतने पैसे में होना चाहिए, और फिर उसको एक बार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. तो उसको मॉनिटर करना ईजी होता है. पर्ट एनालिसिस भी ऐसा ही कुछ करता है, बट दिस इज फॉर अ अनसर्टेन प्रोजेक्ट. अगर ऐसा हो गया तो ऐसा रिएक्ट इतने दिन में बनना चाहिए. सो लेट्स सी, बोथ पर्ट एंड क्रिटिकल पाथ मेथड्स आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, सबसे पहले पर्ट बना था 1950 के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने बनाया था. फिर बाद में क्रिटिकल पाथ मेथड बना था बाय ड्यूपॉन्ट had made the critical path theory. Now let's see, ये कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, जनरली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, जिसमें जो भी लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होने वाला है. ओके, सो द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई एंड द टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वेरी हाई. ओके, सो इन दैट केस when the cost is high and the timing is high, that time you have to incorporate something called as project planning. उस प्लानिंग के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि यू नो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ रेलेवेंट कॉस्ट एंड अ रेलेवेंट टाइम. सो लेट्स सी, so critical path method is a project modeling technique developed in late 50, okay, approximately 1957 by DuPont. Now in this everything is segregated
एंड दे ट्राई टू कंप्लीट कि यार अगर एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि अगर हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है तो सेल्स का पहले इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को टाइम टू परफॉर्म द जॉब इतने टाइम में परफॉर्म हो जाना चाहिए, तो सेल्स पहले अपना एस्टिमेट देगा कि इतने सेल्स होने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम लोग हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल बनाएंगे। प्रोडक्शन शेड्यूल नेक्स्ट 7 days में बन जाना चाहिए कि कितने रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन में क्या जरूरत होगा, फिर वो प्रोडक्शन में इतना बनाना है तो उसकी कॉस्टिंग नेक्स्ट 4 days में हो जाना चाहिए, और फिर बाद में लास्ट में उसका बजट और फाइनेंसिंग के बारे में बातचीत हो जाएगी। तो एक प्रोजेक्ट 45 days के अंदर ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो दे ब्रेक इट डाउन सो दैट एवरी फेज में यू कम टू नो दैट वेदर इट्स गोइंग एज पर द प्लानिंग और नो। दिस ऑल देव गिवन, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सेम एज आई टोल्ड यू, पर्ट जो है वो 3 एस्टिमेट्स में डिवाइड करता है। गुड सिचुएशन में कितने दिन में खत्म होना चाहिए प्रोजेक्ट, नॉर्मल सिचुएशन में कितने दिन में खत्म होना चाहिए, और वर्स्ट सिचुएशन में कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। दिस कंपैरिजन चार्ट यू कैन मार्केट इज इंपॉर्टेंट। पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, ओके, जब एंड इट इज फॉर अनसर्टेन एक्टिविटीज, जबकि सीपीएम जो होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड एक्टिविटीज में होता है जिसमें ऑलरेडी हम लोग ने वो कर चुके हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन। फिर इट इज यूज्ड इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, और ये क्या है, इसको मोस्टली क्रिटिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट जो टास्क होते हैं उसको वो लोग इसमें डालते हैं कि भाई टाइम खर्चा भी कम होना चाहिए और टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए। दिस इज ओरिएंटेड, ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, ये एक प्रोसेस एक्टिविटी ओरिएंटेड। This part talks only about time, whereas this talks about time and cost के हिसाब से होना चाहिए। This is jobs are non-repetitive, this is repetitive. It is used for so generally R&D projects, whereas this specifically is used in construction project। अगर तुम यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग कितने टाइम में और कितने पैसे में बन जानी चाहिए, वो क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो मीन्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग। तो लेट्स सी, पोर्टफोलियो एनालिसिस मीन्स अगर तुम्हारे बिजनेस कंपनी के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, इट हैज मोर देन वन प्रोडक्ट, we can say your portfolio will consist of 2 products. Tell me, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए? What will be better for the business? Can you tell me, should you offer one product or many products? Many products. So majority of the businesses have a portfolio of products to offer to their customers rather than only one product. इससे क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। हर प्रोडक्ट को वो लोग स्टडी करते हैं। इट वॉज प्रपोज्ड इन 1973 बाय पीटर ड्रकर, हु वुड क्लासिफाई इनटू द वेरियस प्रोडक्ट्स। अभी समझते मैं तुमको समझाता हूं, ज्यादा मॉड्यूल में नहीं दिया, बट आई जस्ट टेल यू। फर्स्ट थिंग, एप्पल का तुम देखोगे, क्या एप्पल खाली एक ही प्रोडक्ट बनाता है कि वो नोटिस करोगे कि it deals in phones, it deals in laptops, in desktop computers, in TV, in watch, in your tabs, everything. तो इनके पास में इनका पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है, पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होता है, कभी एक जैसे टीवी पूरा फ्लॉप हुआ था उनका, तो अगर एप्पल टीवी पूरा फ्लॉप हुआ तो बच गए क्योंकि उनके दूसरे प्रोडक्ट्स हिट हो गए थे। ओके, सो लेट्स सी, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। पोर्टफोलियो एनालिसिस मीन द टोटल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू हैव। नेक्स्ट, अब ये मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, बीसीजी मैट्रिक्स। ये एक दूसरा टेक्निक है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बॉस्टन कंसल्टेशन ग्रुप। इट इज यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रैटेजीज, दोस्त इट हेल्प्स यू नो कि वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग। समझते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है
मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर समझते हैं. ये तुम्हारा BCG मैट्रिक्स है एंड यू ऑल हैव टू टेल मी विच वन वुड यू प्रिफर इन बीइंग एक सिचुएशन. पहले मैं तुमसे समझा देता हूं क्या है ये टेक्निक. यहां पे बिजनेस ग्रोथ के बारे में दिया है. बिजनेस ग्रोथ मतलब क्या? कॉम्पिटिटर्स का ग्रोथ, द एंटायर इंडस्ट्री ग्रोथ. तो बिजनेसेस वो पूरा फ्लरिश होते जा रहा है. कैसे? अभी ई कॉमर्स बिजनेस फ्लरिश होते जा रहा है, तो वो बिजनेसेस जो है उस इंडस्ट्री के अंदर सब ग्रो होते जा रहे हैं. और यहां पे क्या है? हम लोग का पोजीशन इन द मार्केट, हम लोग इधर है और यहां पे मार्केट इधर है. तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब पहला वाला मैं बताता हूं. यहां पे क्या है कि हमारा पोजीशन मार्केट में बहुत हाई है. वी हैव अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट. यहां वाला जो रहेगा ना, ये वाला जो पार्ट है, इट इज टॉकिंग अबाउट आवर पोजीशन एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटर्स पोजीशन. यहां पे हमारा पोजीशन इन द मार्केट बहुत अच्छा है, हाई है, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे. तो बिजनेस ग्रोथ मतलब कॉम्पिटिटर्स का ग्रोथ क्या है? लो. यहां पे क्या है? कॉम्पिटिटर्स भी ग्रो हो रहे हैं और मैं भी ग्रो हो रहा हूं. ये स्टार केस में है. यहां पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन मार्क. यहां पे हमारा कम है बट दूसरे सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाई ग्रोथ है. तो क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि यार मैं क्यों ग्रो नहीं हो रहा हूं जब दूसरे ग्रो हो रहे हैं. सबके सब कमा रहे हैं बट मेरा यहां पे लो है और दूसरे लोगों का यहां पे ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है. लास्ट में दोनों ही लुटे हुए हैं. हम भी लुट गए, वो भी लुट गए. हमारा भी मार्केट शेयर नहीं है और मार्केट में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है. फर्स्ट टेल मी विच इज द वर्स्ट स्टेज. टेल मी इट इज स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग. विच इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन? You can unmute and tell. Which one is the worst to be in? Dog. Dog. Perfect. Dog is the worst to be in because हम भी ग्रो नहीं हो रहे हैं और मार्केट में कोई नहीं ग्रो हो रहा है. Now, second, यहां ये ट्रिकी क्वेश्चन है. मे बी यू माइट गेट इट रॉन्ग. विच इज द बेस्ट पोजिशन टू बी इन? कौन सा है बेस्ट पोजीशन टू बी इन? यू कैन अनम्यूट एंड टेल. Cash cow. Cash cow. What others feel? One more I need. Come on, one more. One more person. Cash cow. Cash cow. Perfect. So you got it right. Cash cow. Because what is happening? Here we are growing and the best part is our competitors नहीं grow हो रहे. तो हम लोग आराम से फ्लरिश होते जा रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है. स्टार में क्या होता है? हम तो ग्रो हो रहे हैं और दूसरे भी ग्रो हो रहे हैं, तो दे माइट जस्ट कैच अप. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो यू आर डोमिनेट, यू आर गेटिंग अ मोनोपोली काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो इट्स कॉल्ड एज कैश काउ बिकॉज नाउ यू कैन गेट द बेनिफिट कंटिन्यूसली. ठीक है. सो देन देव एक्सप्लेन्ड. नेक्स्ट, इफ वी सी अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी दैट विल कम अप is a product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का एक टाइम आता है और फिर बाद में वो कम होने लगता है वो उसका स्कोप. सो लेट्स सी, जैसे हम लोग ने कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट में तो सीधा पिकअप होगा. मेनी पीपल विल कम, मेनी पीपल विल स्टार्ट बाइंग, एक क्रेज होगा मार्केट में, फिर ग्रोथ होगा. दिस इज द ग्रोथ स्टेज. फिर मैच्योर हो जाएगा प्रोडक्ट एंड द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर दैट पीपल लाइक नहीं इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इट्स लाइक अ डिक्लाइन. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ठीक है. अब इसकी स्ट्रैटेजी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि जैसे ये मैच्योरिटी आ गया ना, तुम्हें समझना है कि तुम्हें निकलना है और यहां से एक प्रोडक्ट एक्सटेंशन लेके आओ. दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू बी यूज, एक प्रोडक्ट एक्सटेंशन लेके आने का. इसलिए तुम नोटिस करोगे जितने भी मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज है वो लोग यही करते. दे नो OnePlus आया, देखो यहां पे जैसे
उनको पता है 6 मंथ्स के अंदर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर बोर हो जाते हैं, उनको नया लेके आओ। तुम अभी क्रेज बनाएंगे कि यार दिस इज द बेस्ट थिंग, अभी लेने गए और इतने में नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 1+7 आया, गॉट इन अ क्रेज, पीपल वांट टू गेट देयर हैंड्स ऑन इट एंड दे एनी हाउ वांटेड इट। 6 महीने बाद 7T आ गया, तो लोग को 7 दे भी रहे हैं तो भी नहीं खरीदते, तो इसको फिर प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। अभी तुमको मैं 1+5T दूंगा भी ना, तुम बोलोगे नहीं 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 अभी नहीं चाहिए, ओल्ड मॉडल है। वैसे ही सारे बिजनेस जो है उनकी केस स्टडी हुई है हार्वर्ड के अंदर, हाउ दे आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स एंड बाय आर दे लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। सेम विद एप्पल, हर 6 महीने में इनका लॉन्च आता है। इन एवरी 6 months दे लॉन्च, सो दे हैव iPhone 7, तो उनको पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी ग्रो होगा, क्रेज होगा, मैच्योर होगा, फिर डिक्लाइन के टाइम पे प्रोडक्ट एक्सटेंशन में नेक्स्ट वाला लेके आ जाओ। फिर जैसे 1+7 आया, नेक्स्ट 6 months में नया, तो दे कीप गिविंग यू दिस काइंड ऑफ अ ड्रग, दैट क्रेज वेयर वी नो वी आर द फूल्स। प्रोडक्ट में हार्डली कोई डिफरेंस होता है एंड वी गेट क्रेजी बिहाइंड इट, सो दे आर यूजिंग दिस टेक्निक, प्रोडक्ट एक्सटेंशन। समझ में आया? सो इट्स अ इंटरेस्टिंग टेक्निक आफ्टर दे स्टडी दिस। सो हमेशा क्या होता है, पहले बिल्ड करो, फिर होल्ड करो पोजीशन, फिर अपना जितना पैसा बना सकते हो बनाओ, और फिर लास्ट में डाइवेस्ट निकल जाओ मार्केट से। काफी बार इसके 2-3 थियोरीज है टॉकिंग अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट ओनली। नाउ लेट्स सी Ansoff टेक्निक, सुपर डुपर वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक्स ऑन 4 ways टू ग्रो योर बिजनेस, कि पैसे कैसे बनाना है। ओके, एंस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, इट वाज फर्स्ट, ये सब हार्वर्ड की केस स्टडीज है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इन 1957, कॉल्ड इन अ स्ट्रैटेजिस्ट था कॉल्ड आइगोर एंसॉफ, टू हेल्प मैनेजमेंट फोकस ऑन बिजनेस ग्रोथ। उसने ये टेबल दिया, तुम ये टेबल देखोगे ही तुमको समझ में आएगा। नाउ दीज आर 4 टेक्निक्स to grow your business. So the first one is either you take a existing product, तुम्हारा existing product है, तुम उसको मार्केट में पेनिट्रेट करो, ये पहला टेक्निक है। मतलब क्या, ऑलरेडी तुम्हारे मार्केट है, कितने अनटैप कस्टमर्स होंगे, उनको जाओ थोड़ा और डीपर इनटू द मार्केट, ट्राई टू फाइंड इन मोर कस्टमर्स इन योर बिजनेस ओनली। तो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। तुम्हारे ही एरिया में कितने कस्टमर्स अभी तक तुम्हारे पास नहीं आए, उनको टैप करो पहले, तो तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा, प्रॉफिट होगा। सेकंड टेक्निक, अगर तुमको लग रहा है कि तुमने वो मार्केट टैप कर लिया है, तो फिर दूसरे मार्केट में निकलो। दिस इज यू हैव टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट। सो मे बी यू चेंज योर ज्योग्राफिकल टेक्निक, यू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, यू स्टार्ट सेलिंग इन अदर कंट्रीज। तो ये मार्केट डेवलपमेंट होगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही तुम अभी कहां पे दोगे, इन न्यूअर टेरिटरीज। ओके, एक बार ये भी हो गया, अभी सोचो ये भी हो गया, फिर क्या करना है, फिर बाद में तुम्हें नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब न्यू प्रोडक्ट्स होगा, सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो नया प्रोडक्ट है ना, तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही बेचने का। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेल्स। क्रॉस सेल्स में क्या होगा, तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे पास में ऑलरेडी है, वही कस्टमर्स को एक ईमेल भेजो, एक लेटर भेजो, उनको बोलो आप लोग को 50% ऑफ, आप लोग को 30% ऑफ, आप लोग के लिए एक नया प्रोडक्ट बना है। तो यू डोंट हैव टू गो टू हंट कस्टमर्स, दे ऑलरेडी हैव नोन योर प्रोडक्ट, they know who you are, they've seen your service, and then they would want to roll over. So this is another technique. The third one, where I develop a new product and try to sell it to all my existing customers only. So many times I have seen a company, they have become very big, then they launch a new product and send it to their customers only. So उनका सीधा सेल्स बढ़ आता है। नेक्स्ट, सो कॉलेजेस करते हैं एक्चुअली, ये हम लोग मैंने देखा है, कितनी सारी कॉलेजेस है, तुम लोग ऑलरेडी कस्टमर्स हो उस कॉलेज के, उस कॉलेज ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, MBA इन XYZ, एक नया कोर्स निकला है स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप लोग ज्वाइन करो। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द फोर्थ वन
is you diversify into another new market with a new product. So this is ants of ways of making more money. So you have to decide your strategy and then again follow it. Moving forward, ants of के बाद में they have given you another one which is the ADL matrix. Now ADL क्या है? Arthur D. Little. He made this matrix called as a product life cycle. We've seen what it is. Product life cycle. उसके ऊपर काफी सारे हैं. सेम लॉजिक. इसमें क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? पहले तुम एम्ब्रियो स्टेज में रहते हो, फिर ग्रो करोगे, फिर मैच्योर करोगे और फिर एज करोगे. अब उसके हिसाब से थोड़ा और एडवांस में क्या बता रहे वो, जब तुम डिपेंडिंग ऑन योर पोजिशन, कॉम्पिटिटिव पोजिशन इन द मार्केट. अब तुम सोचो कि तुमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कौन से स्टेज में होगा? विच इज द फर्स्ट स्टेज? एम्ब्रियो. सेकेंड इज योर ग्रोथ, थर्ड इज योर मैच्योर और फिर बाद में तुम्हारा प्रोडक्ट अब ज्यादा नहीं बिकेगा. अब सोचो तुमने जैसे इंट्रोड्यूस किया तभी ही मार्केट में ही पोजीशन रहा नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा है. अब तुमको नोटिस करोगे ना, ये बाबा रामदेव when he launches a product, अभी कौन सा उसने, he was for this COVID he had launched a product which was that Coronil. अभी Coronil क्या हुआ, दो उसको वो नहीं मिला अप्रूवल, बट फिर भी ग्रोथ हो गया उसका. फटाफट पीपल वांटेड टू बाय, सो इट बिकेम अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट. कंटिन्यूसली सेकंड स्टेज में भी वो होल्ड पुल कर रहा है पोजीशन, थर्ड में भी कर रहा है वो, मैच्योरिटी में भी डोमिनेंट है मार्केट के अंदर, एजिंग में भी डोमिनेंट. तो यहाँ पे अगर तुम्हारा मार्केट पोजीशन स्ट्रांग है तो खड़े रहो मार्केट में. बट सेम पतंजलि ने दे इशूड समथिंग कॉल्ड एज संस्कारी पैंट्स. तो ये लोग ने संस्कारी जीन्स एक्चुअली इशू की थी वो लोग ने, संस्कारी जीन्स. उसके अंदर क्या था कि चंदन की खुशबू आती है एंड सो ऑन. ठीक है. अब ये जो प्रोडक्ट था स्टार्टिंग से ही इसका क्रेज नहीं था लोगों को. वुड यू गो एंड बाय चंदन की जीन्स जिसमें से चंदन की खुशबू? इट्स अ बड़ी वियर्ड कॉन्सेप्ट बट ही लॉन्च्ड इट. इट बिकेम अ फ्लॉप. ओके, सो देन दे आर सेइंग अगर तुम देखो सेकंड में तुम अगर टर्न अराउंड कर सकते हो, अगर सब जगह तुम्हारा मार्केट पोजीशन वीक है, हर स्टेज में तो बाहर ही निकल जाने में सेंस है, तो उसके ऊपर ज्यादा वो रुकेंगे नहीं. तो डिपेंडिंग ऑन तुमने कितना मार्केट को कैप्चर किया है उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैटेजीज दी है. क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडस्ट्री में हम लोग ने देखा था कि 4 केसेस होते हैं वहां पे, इधर यूर इन द ग्रोथ स्टेज, मैच्योर, एजिंग एक्सेट्रा, कॉम्पिटिटिव पोजीशन. देन एक वापस इसी के ऊपर एक दूसरा बंदे आया है, जनरल इलेक्ट्रिक मैकेंजी मैट्रिक्स. ओके, सो जनरल इलेक्ट्रिक मैकेंजी मैट्रिक अगेन ही हैज गिवन अ टूल. अब देखते हैं इसका क्या, इस बंदे का क्या है. नाउ हिज जो टेक्निक है मॉड्यूल में इतना बराबर से नहीं दिया है, तो आप जस्ट विल टेल यू. तो ये रियल डायग्राम है जनरल इलेक्ट्रिक का. इसमें तुम नोटिस करोगे इसने 3 सिग्नल के ऊपर बनाया है. सिग्नल के कलर के ऊपर से उसने बताया ग्रीन, येलो, रेड. रेड जहां पे भी होगा ना वो बोल रहा है भाई सेल ऑफ, भाग जाओ वहां से, डाइवेस्ट, स्टॉप द बिजनेस, क्लोज. यहां पे जिधर भी ग्रीन का है तो ग्रीन लाइट देखी तो क्या करना चाहिए, वहां पे इन्वेस्ट, अग्रेसिव, और बाकी के बीच के पोजीशन को बोल रहे होल्ड, जो करना है करो. वो येलो में. ठीक है. अब देखते क्या सीन है. नाउ अगर बिजनेस यूनिट का अपना स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीन्स व्हाट, इंडस्ट्री बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहां पे ग्रोथ अच्छा हो रहा है. इमेजिन इट्स अ वेरी फेवरेबल इंडस्ट्री, इट्स ग्रोइंग, कस्टमर्स आर देयर, दे आर रेडी टू पे इफ इट इज हाई. ओके, एंड सोचो योर बिजनेस स्ट्रेंथ, तुम्हारा बिजनेस का स्ट्रेंथ भी बहुत हाई है और मार्केट भी बहुत फेवरेबल है,
तो हमें क्या करना चाहिए, पैसा ज्यादा डालना चाहिए कि नहीं? यस, सो वी शुड इन्वेस्ट. अगर तुमसे देखो मीडियम है मार्केट में, थोड़ा मीडियम है, बट तुम भी अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो तो भी बोल रहे इन्वेस्ट. बट अगर मार्केट इतना फेवरेबल नहीं है, इतना ग्रोथ नहीं है, तो होल्ड और बी सिलेक्टिव जस्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर. सोचो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट, लो तुम्हारी वीकनेस है और मार्केट में भी ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को क्या करना चाहिए, स्टॉप. सोचो मीडियम भी है तो भी बोल रहे स्टॉप. बट तुम्हारा वीकनेस है बट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, ग्रोथ है, तो मे बी यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट. क्लियर? सो दिस वे यू कैन सी मीडियम है और तुम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो तो इन्वेस्ट, अदरवाइज होल्ड, अदरवाइज डिसइन्वेस्ट. सो लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन इन द मॉड्यूल. मॉड्यूल में तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. तो योर स्ट्रेंथ इज हाई एंड मार्केट इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, सो इन्वेस्ट द मनी. लेट्स टेक उसका एग्जैक्ट कन्वर्स. तो यू आर वर्किंग एट योर वीकनेस and market also is not very attractive, so you should divest, harvest, that is liquidate and sell off. और ये सब उसके बीच में आता है. यार ये एग्जैक्ट सेंटर में आता है. मार्केट भी मीडियम है, तुम्हारा स्किल्स भी मीडियम है, तो भाई वैसे ही रखो, ज्यादा कुछ चेंजेस मत लाओ. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलर थिंग मैकेंजी का विच वी एक्सप्लेन. नाउ द नेक्स्ट थियोरी, सर्टेन स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स. मतलब अभी हम लोग ने देखा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज वी हैव सीन, हाउ टू ग्रो, हाउ टू मेक एनालिसिस, हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज. एक दूसरा है स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव, मीन अदर देन दी स्ट्रैटेजीज. दो और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड किए, एक है पॉटर की और दूसरा है ग्लॉक एंड जॉक जेनेरिक स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स. तो 2 more आर गिवन. लेट्स सी द फर्स्ट वन. पहला वाला थोड़ा बेसिक है, बोल रहा है कि तुम डिसाइड करो. इट वॉज गिवन बाय ग्लूक एंड जॉक इन 1984. दे आर सेइंग दैट देर आर 4 ग्रैंड ऑल्टरनेटिव्स दैट यू कैन प्लान. मतलब स्ट्रैटेजीज 2-4 टाइप की हो सकती है. तो पहली वाली देखते हैं स्टेबिलिटी. तुम मुझे बोलो, अगर तुमने अच्छा खासा मार्केट में पोजीशन ले लिया है तो तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी और ग्रो होके अच्छे हो गए हो, तो should you change, should you bring in changes or you should just continue how it was always going on? Stability strategy क्या बोलती है? Don't do anything new, just run it as it is, just keep enjoying the money. तो maintain the current business, safeguard your strengths and run as you were exactly running it. ये तुमको बोलूं कौन स्टेबिलिटी फॉलो कर रहा है स्ट्रैटेजी? एप्पल. तुम मुझे बोलो, एप्पल क्या बहुत सारे इनोवेशन ला रहे हैं अभी? इज एप्पल ब्रिंगिंग इन टू मेनी इनोवेशंस? नो, वो करंट उसके अंदर ही चल रहा है. डोंट डू एनीथिंग न्यू, दे जस्ट वांट टू मेंटेन. जैसा जब तक चला सकते हैं चलाओ. नेक्स्ट, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या है? जो सेकंड होते हैं मार्केट में, वो लोग को डीपर जाना पड़ता है स्ट्रैटेजी में. मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, मार्केट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा. वी कैन से रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू ग्रो एंड एक्सपैंड. तो दे आर गोइंग अग्रेसिव, दे आर नॉट मेंटेनिंग स्टेटस को. एक थर्ड आता है एक्सटर्नल एक्सपेंशन. एक्सटर्नल एक्सपेंशन इज M&A, mergers and amalgamation, go on acquiring companies. Okay, so Tata's generally does that. It goes and it acquires many entities, enters into joint venture. So we've seen Tata's, they have entered into n number of partnerships. Can you tell me anything, any few of them? Tata Voltas, which one? Jaguar and Land Rover, उनको भी किया है external expansion. फिर और कौन से हैं? Starbucks. They are, you can go on and on. First Tata's का एक और था, Tata Docomo. Zara, I've not heard of that. Zara is also there now with them partnership. Yeah, Zara is with them. Okay. Zara and Westside. Westside, yeah. Westside is super cool. So if you see, Tata is following this strategy.
देन कम्स रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी. रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में क्या है कि व्हेन देयर इज अ बैड टाइम लाइक इन कोविड, during this time you are seeing maximum people being removed, they are scaling down, so many, they are trying to cut back cost. So this is another strategy of survival. Remove as many and go as necessary as possible for survival. Okay, then another strategy जो दिया है वो है Potter's generic strategies in his book called as competitive advantage. He is given something like this: टेक्निक्स ऑफ अर्निंग. या तो कॉस्ट कम करो या तो डिफरेंट बनो. समझते क्या सीन है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अभी देर आर टू वेज ऑफ अर्निंग मनी. ईदर आई रिड्यूस द कॉस्ट एंड कस्टमर्स कम टू मी, और आई इंप्रूव माई क्वालिटी. राइट, टू वेज. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू बोथ. It is practically impossible to reduce your cost and improve your quality. When I plan to go for reduction of cost, I start cutting down on the features. So then I can't give you that quality. And if I start giving you quality, obviously the cost will go up. So two ways of doing profit. अब देखते हैं यहाँ पे पहला वाला बात करेंगे. पहले दो बात करें कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट लीडरशिप, और फिर दूसरे देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में. तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट एडवांटेज कर रहे हैं, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं मैं, और एक दूसरे साइड पे क्या है, हायर कॉस्ट पे बेच रहा हूं सामान. अब लो कॉस्ट पे बेच रहा हूं और कॉम्पिटिटिव स्कोप, मतलब मार्केट में कितना स्कोप है, कम है कि ज्यादा. तो पहले अगर बहुत ही ज्यादा स्कोप है, इट्स अ ब्रॉड मार्केट, और मैं कॉस्ट पे मेरी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल Amazon स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेच रहा है कि नहीं, येस और नो? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, बट व्हाट इज देयर एज? सो देयर एज इज लो कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट. अब हाउ डू दे मेंटेन दैट? They try to give their delivery speed, they try to get in better networks, better technology, better coordination, everything, and sell standard products throughout. So that's their strategy on going on large scale, where the scope is big, the type of goods people are ordering is large, and we are going to give them all at, so we are going to work on scale. दूसरा सेगमेंट क्या है, कम पे दे रहा हूं बट फोकस कर रहा हूं सिर्फ एक सेगमेंट पे. ज्यादा लोग नहीं है यहां पे मार्केट में, बट एक सेगमेंट को ही टारगेट कर रहा हूं मैं और उनको कम भाव में दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल 2-in-1 लैपटॉप्स. अब मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है क्या 2-in-1 लैपटॉप्स का? व्हेन यू गो इन द मार्केट, डू यू से मेरे को 2-in-1 लैपटॉप चाहिए? तो मे बी इट इज अ सबसेट ऑफ अ मार्केट. लैपटॉप के अंदर 2-in-1 लैपटॉप है, तो हम बोल सकते हैं कि तो स्कोप है थोड़ा नैरोअर है, और उसके अंदर फिर कंपटीशन होता है. सो आई एम सेलिंग 2-in-1 लैपटॉप्स एट अ लोअर प्राइस एज कंपेयर टू अदर्स. सो 2-in-1 लैपटॉप्स क्या होते हैं? लैपटॉप पूरा फोल्ड होके टैब में बन जाता है. समथिंग दैट आई हैव. तो पता है लेनोवो का एक आया है, कौन सा है वो 2-in-1 लैपटॉप? एनीवन नोज? पूरा फोल्ड हो जाता है. योगा. तो ये कैसा है? इट इज अ मार्केट सबसेट, सेगमेंट है वो 2-in-1 लैपटॉप्स का. वैसे ही मेरे पास में डेल इंस्पायरियन है, तो दैट ऑल्सो फोल्ड्स. ठीक है. सो दिस इज अबाउट गोइंग टू ईदर द स्कोप इज वाइड और द स्कोप इज नैरो, एंड देन आई एम सेलिंग देम एट चीप प्राइस. अब दूसरी दो स्ट्रैटेजीज क्या है? प्राइस कम नहीं करेंगे, प्राइस तो बढ़ाएंगे हम लोग हाई कॉस्ट पे देंगे, तो भी पब्लिक बाय करेगी. एग्जाम्पल देखो, एप्पल फॉलोज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है? दैट द स्कोप इज लार्ज. मोबाइल फोन ही बेच रहे हैं हम भी, बट हम मोबाइल फोन में क्वालिटी देंगे, ब्रांड बिल्डिंग में करेंगे. सो एप्पल हैज टू फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग when you go for pricing. Okay, so Apple is selling pure mobile phones,
It is selling a normal laptop, but they have some differentiation with the customers feel, because of which they are going to keep high cost and still people will buy. So they are operating here. The scope is also wide of laptops and the price is also very high. Next, we are going to see another part where we are going to raise the price, but the market scope is not that much. Laptop का कैसे इतने सारे में बिकते हैं, मोबाइल फोन्स कितने लाखों में बिकेंगे. If I'm talking of Ferrari, you think there might be lot of Ferrari buyers? No. तो नैरो है मार्केट और प्राइस डिस्टिंक्शन भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी कि हमें टारगेटेड ऑडियंस के पास में जाना पड़ेगा. ये टीवी पे ऐड डाल सकते हैं एप्पल का, बट फरारी की ऐड कभी भी टीवी में नहीं देखोगे. तो वैसे ही तुम्हें तुम्हारा ऑडियंस सिलेक्ट करना है, अपनी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है और फिर बाद में तुम्हारे मार्केटिंग प्लान्स बनाओगे. तो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है. कॉस्ट लीडरशिप मतलब तुम अपना कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो मार्केट में. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में क्या होगा, तुम अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट्स को, जो कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं है इतने, उनको टारगेट कर रहे हो तुम, तो क्वालिटी बढ़ा के दो उनको. फोकस स्ट्रैटेजी, वी सॉ ऑल दोस थिंग्स दे आर गिवन दैट यू हैव टू फोकस टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. ओके, तो ये यहां पे है. बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हियर. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेसेस, बहुत ही जेनेरिक चीज आने वाली है अभी कि एनवायरमेंट अफेक्ट्स योर बिजनेस. सो लेट्स सी. तो एक छोटा सा डायग्राम है और खत्म हो जाता है योर. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट जस्ट कवर्स एवरीथिंग. बिजनेस एनवायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल एनवायरमेंट जो हमारे कंट्रोल में होता है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट जिसमें हमारे पास में इतना कंट्रोल नहीं होता है. इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या आ सकता है? वॉट ऑल कैन यू कंट्रोल? यू कैन कंट्रोल योर बिलीव्स, योर विजन, मिशन, योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, योर लेबर यूनियंस, योर मैन पावर, कल्चरल पीपल एक्सेट्रा, या एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. वेरेज एक्सटर्नल एनवायरमेंट कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर नहीं होता है, जैसे सप्लायर्स. माइक्रो एस्पेक्ट्स एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स को डिवाइड किया है फर्दर. माइक्रो मतलब फिर भी तुम कंट्रोल कर सकते हो इसको, सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक. तो टू सम एक्सटेंट यू हैव अ माइक्रो एस्पेक्ट्स. मैक्रो मतलब क्या? कंट्री वाइज इट अफेक्ट्स पीपल एट लार्ज, सबको ही अफेक्ट होगा. इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, सब अफेक्ट होंगे. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज ही नहीं आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहता हूं, बट इंडिया में वो फैसिलिटी ही नहीं है, यू डोंट हैव इलेक्ट्रिक पंप्स, तो देन इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू डू बिजनेस. सो यू हैव टू एनालाइज ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स. सॉरी, next year Tesla is coming. Elon Musk ने आज बोला. Yeah, so Tesla is coming, but you know this, it might not come on a scale because he had said initially that there is not enough electric pumps, okay, and buyers in the market. But let's see, he will issue a competitive price. Now, after this, then again the internal environment, vision, mission, values they're talking about, and then we are done with the chapter. Okay.